लोग मारे गए थे। मुजफ्फरनगर से लेके बनारस तक कोई ऐसा शहर नहीं बचा था जहां पर लोगों की पिटाई नहीं हुई हो। 1 लाख लोगों के खिलाफ एफआईआर सिर्फ 2 दिन में किए गए थे। एक शहर कानपुर है, कानपुर in Parliament without debate, and the Supreme Court of India, the Chief Justice of the Supreme Court of India oversaw the execution of the CAA and the NRC as if the Supreme Court is an administrative organization and not the highest court of justice. NRC और जैसे बाकी दुनिया के बाकी देशों में बहुत सा बहस होते हैं कि हम लोग रेफ्यूजीज़ के साथ क्या करें। अमेरिका में होते हैं, यूरोप में होते हैं, अभी पोलैंड में हो रहा है। But the NRC was not a refugee management law. It was a refugee manufacturing law, जिसमें अपने ही देश के सिटीजन्स को आप रेफ्यूजी बना रहे हैं। और ये आप असम में जाके देख सकते हैं पहली बार। Now when the young people, when the Muslim community, when many of us who believe or support the Constitution rose up in protest, what Mridula is saying is right. The massacre, I have no subtlety in saying this massacre was designed by the state to crush the protest. So we have been talking about 20 years of Gujarat ka 20 saal. We talked about Gujarat, we talked about the Delhi massacre. हम बीच में मुजफ्फरनगर का मैसेकर को भी भूल गए, वो भी एक इलेक्शन कैंपेन ही था। What was the difference? Now we cannot forget the 1984 massacre in Delhi. There were 3,000, many more people were killed. That too was a massacre backed in many ways by a political party and by institutions of the state. What is the difference between that one and this? The difference is the murders were no less cruel. The justice was no less far away. The difference is that this series of massacres that we are talking about have a deep ideological base, and it is the base on which the ruling party in this country functions. So we are, I mean, personally, I feel really stupid sitting here today. Really stupid. Asking कि judicial inquiry होना चाहिए, retired judge होना चाहिए, institutions ने hospital में साथ दिया, police ने साथ दिया। हमको ये पता है, गुजरात से पता है। Same thing happened in Gujarat, no? I mean, Apurvanand talked about Gulbarga. Women were raped and killed, people were incinerated. Ehsan Jafri had his arms cut off. The killers came and boasted about doing that on TV. What happened to the people? Unko kya hua? Maya Kodnani, accused and subsequently convicted in Naroda Patia massacre. She was made the Minister for Women and Child Development, right? All of them are out. Babu Bajrangi is out. Muzaffarnagar massacre, they became ministers, MLAs, garlanded. What are we talking about? Police are साथ दे रहे, medical community साथ दे रहे। वो जो testimony दे रहे थे उस दिन, हॉस्पिटल में जाते हैं, घायल लोग मर रहे और डॉक्टर्स नर्सेस कह रहे कि आपको आज़ादी चाहिए ना, आज़ादी ले लो। यही हो रहा है। और when we, I mean, I have been traveling in UP quite a lot of late, and the thing is that we know that all this has been orchestrated from the very top. This particular ruling party has come to power on the basis of false flag attacks, on the basis of massacres. Gujarat massacre के बाद ही बना ना हिंदू हृदय सम्राट।
So when he was campaigning for prime ministership, Reuters asked him, does he regret the Gujarat massacre? And he said, I would regret it even if a dog came under the wheels of my car. But today, what we are seeing, as we saw in Northeast Delhi, the people, all the people are not poisoned. बहुत से लोग हैं जो साथ दिए थे एक दूसरे के, और अब स्लोली देश के लोगों को पता लग रहा है कि इस तरह का घृणा और नफरत और हिंदू मुस्लिम कर करा के सिर्फ मुस्लिम नहीं कुचला जाते हैं, सबसे गरीब हिंदुओं भी कुचल जाते हैं। सब वहाँ पे इतना, मतलब यूपी में जहाँ इनका पूरा ये मॉडर्न हिंदुत्व जो शुरू हुआ है, वहाँ लोगों का हाल देखने लायक है। मतलब गरीबी और भूख और खुला सांड, और आप 5 किलो चावल दे दो, वहाँ पशु 5 क्विंटल खा रहे। तो दिस होल सिस्टम is not going to get solved by court cases. It is not going to get solved by inquiry committees. It is not going to be solved by retired judges. It is only going to get solved when these people are voted out of power. And for that, we must understand that even the people against whom, mostly Muslims and Christians and communists, mostly the people they point the needle and accusatory finger of hatred at, are not the only ones who are suffering. The majority of this country is suffering, being fooled by this. So you have Omar Khalid and Khalid Saifi and students and wonderful young minds all in jail today based on this so-called conspiracy. I have seen those charge sheets. अच्छा, ये नहीं है कि they are stupid. That is not what is going on here. Discrepancies है या नहीं है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज शीट ये अगर कोर्ट में ट्रायल में जाएंगे 5 साल तो निकल जाएगा। ये डिस्क्रेपेंसीज बोलते बताते ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है झूठ बोलना नहीं बोलना, क्योंकि वो उनको पता है कि प्रोटेक्शन ऊपर से आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन है। तो you have a situation where this is a standard practice all over the world. You see that they get you lost in paperwork, they get you lost in this maze of thinking that somehow the whether it's the medical institutions or the judicial institutions or whatever institutions are not being run by them. If you look at who are the people who have been sent out on bail, UP elections के टाइम में किस को बेल मिला, यति नरसिंहन को बेल मिला, वो राम रहीम को मिला, आशीष मिश्रा को मिला। जैसे कि आप इतना कंट्रोल है आपका कोर्ट्स पे कि आप यूपी के इलेक्शन का फेज देख के उनको ब्राह्मण का वोट आ रहा है तो इनको छोड़ दो, इनका वोट नहीं है तो उसको छोड़ दो। मतलब ये पूरा एक इंस्टीट्यूशनल the compromising, the hollowing out of the institutions of this country, from the Supreme Court to the intelligence to the police, सब ये तो घिसते जा रहे हैं। और हम लोग I mean, it's a great thing that this tribunal happened. I'm proud to be here. I'm just telling you honestly that we see, I mean, somebody praised the media, that's good, but is the media here? No, it's not. The mainstream media doesn't even bother now. It doesn't even bother, you know. It's not even pretending anymore. So the media is an institution that has failed us enormously. You have, so I don't want to say anymore. I agree with what everybody has said, but I'm just not willing to believe anymore in the fact that this is not all, that we are not our big machine. It's the big machine. And the big crime was the NRC, CAA in this case.
I'm not willing to call these riots. They were not riots. This was a pre-planned massacre. You know, a massacre in which obviously the people who suffered the massacre, the people who died, the people whose businesses were burned, the people who were, I mean, we saw the testimonies and films of people who had acid poured in their eyes. We saw the pictures of people being beaten and humiliated. Who can forget the story of Faizan, one of the people who died after the police forced young Muslim men who were injured and dying on the streets in public to sing the national anthem as they died. हालात से दिल्ली को जूझना पड़ा और उसका नतीजा क्या हुआ वो भी आपके सामने सब खोल के रख दिया गया है। मैं आपसे गुजारिश ये करती हूँ कि चंद बातें जो मैंने थोड़ी बहुत लिखी हैं, उस दिन हम लोग सारी रुदाद लिखते चले गए, मगर चंद बातें ऐसी हैं कि जिस पे आप ज़्यादा गौर कर सकते हैं। और उसके में पहली चीज़ जो है वो है पुलिस का जो रोल है, उस पे गौर करिए। हर तरफ से पुलिस ने इतनी कॉम्प्लिसिटी दिखाई है, इस तरह से तोड़ मरोड़ के, हिंसा करके, लोगों के अंदर गोलियां उतार के उन्होंने लोगों को एक तरह से बेबस बना दिया है। ये है हमारी भारत सरकार का रोल और उस पे आप गौर करिए। दूसरा, आप गौर करिए दिल्ली सरकार के रोल पे। जिस दिल्ली सरकार के पास इतना सरमाया है कि वो दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपया एक मौत के लिए दे सकती है, जिसके लिए हम सब सोगवार हैं, हम सबको अफसोस है। अगर कोई मौत, किसी की भी मौत हुई तो उसके लिए हम सब गुनहगार हैं और सोगवार हैं, मगर उसके पास इतना सरमाया है कि वो एक मौत के लिए 1 करोड़ दे सकती है और दूसरी मौत के लिए 5 लाख या 10 लाख। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप सब जानते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ, तो इसके बारे में भी सोचिए। और एक और चीज़ जो मैंने पहली बार सुना जब मैं इस पैनल के जब पैनल ने जूरी के सामने डिपोज किया, तो मैंने एक एक्सप्रेशन सुना, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। मैंने नहीं सुना था कि इस तरह से एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके और डेटा को इस्तेमाल करके इस तरह से बायसेस बिल्डअप हो जाते हैं। यानी आप कहने को तो आप साइंटिफिक डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उसमें क्या हो रहा है कि उसमें इतना बायस है कि उसका जो नतीजा है वो प्रिडिक्टेबल है। यानी नतीजा ये है कि एक कौम जो है वही गुनहगार के कटहरे में खड़ी है। अगर एक कौम जो है वो डेटा ही प्रूव करता है, बहुत साइंटिफिक डेटा है, मगर वो डेटा ही प्रूव करता है कि वो कौम जो है वही गुनहगार है। जब अपूर्वानंद ने ये बात कही कि हम ये देख रहे हैं 20 साल गुजरे हैं बिल्किस बानो को, कौसर बानो को, 20 साल गुजरे हैं ज़किया जाफरी को, उन औरतों को जिन्होंने कुछ ख़त्म हो गई, कुछ तकरीबन लबे मर्ग हैं, और उन लोगों ने उनके ऊपर ये तजुर्बात उन्होंने किए हैं, और 20 साल बाद हम उन्हीं हालात से हम दो चार हैं। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि अपूर्वानंद ने इसकी तरफ इशारा किया और देव साहब ने भी इशारा किया, और यकीनन सब मेरे कॉलीग्स भी करेंगे कि इसकी जो बुनियादी सबसे तकलीफ दे बात यह है कि जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो खलीज है, जो कैज़म है, उसको गहरा ही होना चाहिए, उसको गहराते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम दाएं बाएं आपस में मिलें, आपस में रहें। हमारे एक लफ्ज़ था हमारे वोकैबुलरी में, गंगा जमुनी तहजीब, वो लफ्ज़ ही अब बुरा हो गया है, उसके बाद ही करें तो लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या कोई गाली दे रहा है। वही हमारी तहजीब थी, उसको ख़त्म कर दिया जाए, यही एक एजेंडा है, और इसी एजेंडे पे हम उसी खाई में गिरते चले जा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट जो है, इसकी फाइंडिंग्स जो हैं, मैं बस और ज़्यादा कहना नहीं चाहती,
मगर इसकी फाइंडिंग जो है वो एक चेतावनी है, एक खतरे की घंटी है कि हम उस खाई में क्यों गिरते चले जा रहे हैं, जब हमारा मुल्क जो है उसकी खूबसूरती, उसका जो उसमें जो एक हुस्न है, उससे दुनिया गवाह है, मगर हम उसमें गिरते चले जा रहे हैं। अपने आप को रोकें और सोचें कि ये जो इस वक्त जो जहर है, वो जहर कहाँ, बुनियादी तौर से वो जहर दिमागों में भरा जा रहा है। और जब तक हम तालीम, और जब हम तालीम की बात करते हैं तो वो पुलिस की भी तालीम है, वो मेडिकल लोगों की भी तालीम है, वो तालीम जो सेंसिटाइजेशन सिखाए, जो मजहबी हम आहंगी सिखाए, जो कम्युनिटी, जो भाईचारा भाईचारा सिखाए, वो तालीम, उस तालीम वो बहुत मुश्किल काम है, वो कोई आसान काम नहीं है, मगर उसकी तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है। तो अगर ये रिपोर्ट इस बात को हाईलाइट कर रही है तो मेरी, अब जितने हमारे मीडिया के लोग हैं और बाकी इतने सारे लोग हैं जिनकी बहुत दूर दूर तक पहुंच है, तो मेरी गुजारिश उन सब से है जिनकी दूर दूर पहुंच है, इस बात को आप ले जाएं, क्योंकि आपके बाहर से आए थे। हम भी जब फरवरी 2020 को पामेला, हम और बाकी सारे लोग यहाँ बैठे हुए कई लोग जब उन इलाकों में गए तो हमें उन इलाकों के रहने वाले गैर मुसलमान लोगों ने कहा कि हमलावर बाहर से आए। लेकिन परसों की हियरिंग में यह बात बहुत साफ थी कि हमलावर मोहल्ले के लोग थे, हमलावर पड़ोसी थे, जिन्होंने पहचान करवाई। लूट, हिंसा के बाद खाई और चौड़ी होती है, और हिंसा का एक मकसद यह भी होता है कि जो हिंसा का शिकार हुआ है उसके विरुद्ध घृणा और बढ़ जाती है। और ये एक बहुत विडंबना की बात है कि हिंसा के शिकार मुसलमानों के खिलाफ उनके पड़ोसियों की घृणा और बढ़ जाती है, और उसमें जो दूसरी जटिलताएं आती हैं, जो मुआवजे को लेकर हैं और बाकी चीज़ों को लेकर है, और उसके सहारे फिर उनके पड़ोसियों में एक जलन पैदा करने की कोशिश की जाती है कि यह दरअसल एक तरह का बेनिफिट है, एक तरह का फायदा है जो लेने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, और ये खुद को बेचारा दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात भी बहुत साफ जाहिर थी कि हम ये नहीं कह सकते कि उसके बाद सामाजिक सौहार्द को वापस लाना उतना आसान होगा जितना हम बार बार कहते हैं। वैसे भी भारतवर्ष में हम लोग एक दूसरे के अगल बगल रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति सौहार्द हो या आवश्यक नहीं है। लेकिन जब भी हिंसा की कोई एक ऐसी घटना होती है, वह उसको और भी तोड़ देती है उस ताने बाने, और वापस उसकी सिलाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह बात परसों वहाँ बैठकर और यह सोचते हुए कि यह एक दिन पहले हो रहा है जब 20 साल हो जाएंगे गुजरात की हिंसा के, और हमने गुजरात की हिंसा के इन 20 वर्षों में 20 साल गुजर जाने के बाद भी, और उसका इससे बेहतर प्रतीक कोई नहीं हो सकता कि आप गुलबर्ग सोसाइटी की तस्वीर आज देखें। गुलबर्ग सोसाइटी पर जो घास पतवार उगाया है उसको आप देख लें, वह इसका प्रतीक है कि हिंसा इस समाज के साथ क्या करती है। आप जकिया जाफरी के इंसाफ के संघर्ष को देख लें, और वह कितना अकेला और कितना मुश्किल संघर्ष है इसको देख लें। आप इसको याद करें कि बिल्किस बानो को कितने साल लड़ना पड़ा, और बिल्किस बानो के साथ लड़ाई में कितने लोगों को लड़ना पड़ा, और वह लड़ाई कितनी मुश्किल थी, जिसके बाद बिल्किस बानो को इंसाफ मिला। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि बिल्किस बानो को इस समाज ने, जो बहुसंख्यक समाज है, अपना लिया, और उसके साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसको लेकर कोई पछतावा है? ये सवाल ज़रा सख्त हैं और हमें अपने आप से करने हैं। गुजरात की हिंसा के 20 साल पूरा होने पर, दिल्ली की हिंसा के 2 साल पूरा होने पर, कि क्यों हिंसा एक जरिया है जिससे आप अपना राजनीतिक करियर बना सकते हैं। विरोधी हिंसा को इतनी स्वीकृति इस समाज में इन 20 वर्षों में मिली है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई उसका आरोप जिन पर हिंसा हुई उन्हीं पर लगाया गया। और अभी 3 रोज पहले यहीं बगल में एक
गोष्ठी हुई थी जिसमें यह बतलाया गया कि कैसे यह हिंसा उन लोगों के द्वारा की गई थी जो नागरिकता के कानून का विरोध कर रहे थे और कैसे यह हिंसा हिंदू विरोधी हिंसा थी। तो इस समय जब सरकार के सहारे और सरकार में जब वे लोग बैठे हैं जो गुजरात की हिंसा के बल पर ही आज हिंदुस्तान की सत्ता में हैं, और दिल्ली की सरकार में वे लोग बैठे हैं जिन्होंने दिल्ली की हिंसा की तरफ से आंख मूंद ली, क्योंकि उस हिंसा में हाथ डालना उनके लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह होता। उस वक्त हम सब लोगों का फिर से उसको याद करना, उसके अर्थ को समझना और उसमें अपनी भूमिका तय करना बहुत ज़रूरी है। यह रिपोर्ट जो आपके सामने है और जिस पर आगे भी बात होगी, इस रिपोर्ट पर हमें एक बड़ी सामाजिक चर्चा आरंभ करनी होगी। वह सिर्फ कुछ फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस का मामला नहीं। भारत की सारी राजकीय संस्थाओं को अपनी समीक्षा करने और भारत की सारी सामाजिक संस्थाओं को अपनी समीक्षा करने का एक और मौका यह रिपोर्ट देती है। बहुत बहुत शुक्रिया।